الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یتساءلون۔ وہ کفار مکہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کفار مکہ کو قیامت کے بارے میں خبر دی کہ ایک دن تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، سب لوگوں کو جمع کیا جائے گا اور قیامت واقع ہوگی۔ تو کفار نے مذاق اڑایا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، کب قیامت واقع ہوگی؟ جلدی واقع کرا دیجئے۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مذاق بنایا، مذاقاً سوال کیا کرتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ اسی واقعے کے پس منظر اس آیت کے اندر بیان کیا ہے، اما یتساءلون، وہ کفار مکہ کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ خود ہی اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں، عن النبع العظیم، وہ بڑی خبر کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ نبع کہتے ہیں خبر کو، لیکن عام خبر کو نبع نہیں کہتے، بلکہ بڑی خبر، عظیم الشان خبر کو نبع کہتے ہیں۔ قیامت عظیم الشان ہے، بہت بڑی خبر ہے، ہولناک خبر ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں نبع لفظ لے کر آئے۔ اما یتساءلون عن النبع العظیم الذی هم فیہ مختلفون، یہ وہ چیز ہے جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی کچھ تو سرے سے ہی انکار کرتے تھے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی، کچھ کہتے تھے کہ اگر قیامت واقع بھی ہوگی تو ہمارے جو معبود ہیں وہ ہماری سفارش کر دیں گے، جن کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہماری سفارش کر دیں گے۔ اور مسلمان ایمان رکھتے تھے قیامت کے دن پر، تو گویا کہ کئی فرقے وجود میں آ گئے اور آپس میں اختلاف کرنے لگے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے ارشاد فرماتے ہیں، کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ یعنی یہ خبر ایسی نہیں ہے کہ جس میں اختلاف کیا جائے، نہیں، بلکہ ان قریب وہ جان لیں گے۔ جیسے ہی موت واقع ہوگی اسی وقت ان کو ہر حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ مقرر ارشاد فرماتے ہیں، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اس سے پچھلی آیتوں کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سوالات اور ان کا رد کیا تھا، اور قیامت کا انکار اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا انکار ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہی نہیں ہے قیامت کو واقع کرنے پر۔ اس سے اگلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے کچھ نمونے ظاہر کرتے ہیں، کچھ مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھو فلاں فلاں چیز بنائی۔ جب ہم ان چیزوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے تو قیامت تو قائم کرنے پر بدرجہ اولا قادر ہیں، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ بغیر کسی نمونے کے دیکھے ہوئے انسان کو یہ زمین، آسمان، سورج، ستاروں کو پیدا کر دیا، تو دوبارہ، اب تو نمونہ بھی موجود ہے، اب دوبارہ پیدا کرنا پہلے کی نسبت آسان ہے۔ تو اس سے اگلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کے کچھ نمونے ظاہر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ یعنی زمین کو مسخر کر کے ہمارے قدموں تلے بچھا دیا۔ پھر یہ کہ زمین کو نہ زیادہ نرم بنایا کہ چلتے ہوئے قدم دھسنے لگے، نہ زیادہ سخت بنایا کہ اگر ہم اس کو کھودنا چاہیں یا کچھ اس کے اندر داخل کرنا چاہے تو داخل نہ کر سکے، بلکہ درمیانی بنایا، نہ تو اتنا نرم کہ پیر دھس سکے، نہ اتنا سخت لوہے کی طرح کہ اس کو کھودا ہی نہ جا سکے۔ والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخ بنایا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جب زمین کو پیدا کیا پانی پر تو زمین ہلنے لگی، ڈگمگانے لگی، تو اللہ تبارک و تعالی نے مضبوط پہاڑ زمین پر قائم کر دیے تاکہ زمین ہلے نہ، ڈگمگائے نہ۔ جس طرح کسی چیز کے اندر کوئی ہل رہی ہو، اس کے اندر اگر کیل ٹھوک دی جائے، میخ ٹھوک دی جائے تو وہ ہلنا بند ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو پیدا کر کے اس پر پہاڑ بنا دیے تاکہ وہ نہ ہلے نہ ڈگمگائے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے جو ذی روح ہیں ان کے ہر کے جوڑے جوڑے بنائے تاکہ توالد و تناسل کا سلسلہ آگے بڑھ سکے۔ پھر یہ کہ آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے جن سے مخالف کی ضرورت ہوتی ہے، آپس
यानी मर्द मर्द ज़िंदगी नहीं गुजार सकते, इसी तरह औरत औरत से मिलकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़े जोड़े बनाया ताकि वो उससे उनसियत हासिल करे, ये उससे उनसियत हासिल करे। फिर ये कि इंसान हुई अंदर ही नहीं बल्कि हर मखलूक के अंदर, तकरीबन हर मखलूक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जोड़े बनाए। यहाँ तक कि दरख्तों के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने नर व मादा रखे हैं। वजअलना नौमकुम सुबाता, और हमने तुम्हारे लिए नींद को आराम की चीज़ बनाया। आदमी दिन भर थक कर, हार थक कर जब थक जाता है तो नींद उसके लिए राहत की चीज़ बनाई। फिर ये एक ऐसी नेमत है जो हर फ़कीर गरीब सबको बराबर मिलती है, यानी सबको नींद आती है। नींद से पूरी दिन की थकान ख़त्म हो जाती है और अगले दिन के लिए आदमी पूरा चुस्त व चालाक होकर उठता है। फिर ये कि ये नेमत बिल्कुल आम है, हर फ़कीर गरीब सबको मिलती है। यहाँ तक कि गरीब को ज़्यादा मिलती है और अमीर को बसा औकात कम मिलती है। गरीब को आप देखेंगे कि रास्ते पर फुटपाथ पर पड़कर उसको नींद आ जाती है, लेकिन अमीर को एसी के बंगलों के अंदर भी बसा औकात नींद नहीं आती। और जो ख्वाब आवर गोलियां हैं वो अमीर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। वजअलना लैल लिबासा, और हमने रात को लिबास बनाया, यानी कि नींद ही नहीं बनाई बल्कि उसके असबाब भी पैदा किए। क्योंकि उमूमन नींद जब शोर व शगब हो या बहुत ज़्यादा रोशनी हो उस वक्त नींद अच्छी नहीं आती। तो अल्लाह तबारक व तआला नींद के साथ उसके असबाब भी पैदा किए, यानी रात को पैदा किया ताकि रात में अच्छी तरह नींद आ सके। फिर ये कि सिर्फ नींद ही काफ़ी नहीं है बल्कि रोज़ी के लिए भी आदमी को कुछ दौड़ धूप करनी पड़ती है, तो उसके लिए दिन बनाया। उसी का तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला करते हैं, वजअलना नहारा मआशा, और हमने दिन को रोज़ी का वक्त बनाया, रोज़ी हासिल करने का वक्त बनाया। यानी दिन में आदमी दौड़ धूप करके कुछ असबाब मुहैया करके कुछ रोज़ी खाने पीने का इंतज़ाम करता है ताकि उसकी ज़िंदगी गुजर हो सके। व बनैना फ़ौक़कुम सबअन शिदादा, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए, यानी पे दर पे एक दूसरे के ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए। फिर सवाल ये होता है कि हमको तो सिर्फ एक ही नज़र आता है, किसी चीज़ के मौजूद होने के लिए उसका नज़र आना कोई ज़रूरी नहीं है। वजअलना सिराजम वहाजा, और हमने एक रोशन चराग बनाया, यानी सूरज। सूरज के बहुत से फ़ायदे हैं, खेती पकती है, दिन सारे काम आदमी सूरज की रोशनी में ही करता है। इतनी ईजादात हो चुकी हैं लेकिन सूरज के मुकाबले का कोई भी चिराग या कोई भी बल्ब ऐसा ईजाद नहीं हुआ कि जो सूरज की जितनी जो रोशनी है वो दे सके। व अनज़लना मिनल मुअसिराति माअन सज्जाजा, और हमने पानी भरे बादलों से पानी बरसाया, यानी बारिश एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर पूरे मौसम में बारिश ही ना हो तो खेती नहीं उगेगी, या अगर उग भी जाए तो इतनी अच्छी नहीं होगी जितनी बारिश से अच्छी होती है। लिनुखरिज बिही हब्बन व नबाता, फिर बारिश के ज़रिए हम गल्ले और सब्ज़ा उगाते हैं। व जन्नातिन अल्फाफा, और गुंजान बाग उगाते हैं। यानी बारिश के फ़ायदे शुमार कराए हैं कि बारिश होती है तो गल्ले उगते हैं, सब्ज़ा उगता है, गल्ला इंसानों के काम आता है, सब्ज़ा जानवर खाते हैं, और गुंजान बाग जिन पर फल फूल वगैरह आते हैं। यहाँ तक अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी नेमतों का तज़किरा किया है कि ये अल्लाह तबारक व ताला जब इन नेमतों के पैदा करने पर कादिर है तो क़यामत कौन सी बड़ी चीज़ है कि क़यामत को अल्लाह तबारक व ताला पैदा नहीं कर सकते। फिर अगली आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व ताला उसी क़यामत के वक़ू का बयान करते हैं कि सिर्फ़ ये एक वादा नहीं है बल्कि ये वाक़ होकर रहेगी। उसी को अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना यौमल फ़स्ल कान मीक़ाता, बिलाशुबा फ़ैसले का दिन एक मुक़र्ररा वक्त है। क़यामत एक मुक़र्ररा वक्त के अंदर आएगी। फिर किस दिन वाक़ होगी ये सही इल्म न किसी नबी को दिया गया न किसी फ़रिश्ते को दिया गया, बस ये बतला दिया गया कि क़यामत ज़रूर वाक़ होगी। किस दिन वाक़ होगी, किस तारीख़ में वाक़ होगी, यकीनी तौर पर किसी को भी इसका इल्म नहीं दिया गया सिवाय अल्लाह तबारक व तआला के। यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़तातून अफ़वाजा, जिस दिन सूर में फूंक मारी जाएगी तो तुम फ़ौज दर फ़ौज अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर हो जाओगे।
जिस दिन सूर फूंका जाएगा। यहाँ नफ़क़ा सानिया का तज़किरा किया गया है। नफ़क़े दो होंगे। पहला नफ़क़ा तो ये होगा कि जब पहला नफ़क़ा यानी पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा तो जो इंसान उस वक्त होंगे वो सब के सब मर जाएंगे। फिर उसके 40 साल बाद दूसरा नफ़क़ा यानी दूसरी मरतबा सूर फूंका जाएगा तो सब यानी जो मर चुके हैं, जो क़यामत तक मरे हैं, सब इंसान दोबारा ज़िंदा होकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में इकट्ठे होंगे। उसी का तज़किरा किया है, यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़ताअतूना अफ़वाजा, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम फ़ौज दर फ़ौज आओगे। यानी हर जमात अलग होगी, नेकों की जमात अलग होगी, बुरों की जमात अलग होगी, फिर हर नबी की उम्मत अलग होगी। वफ़ुतिहतिस समाउ फ़कानत अबवाबा, और आसमान खोल दिया जाएगा तो वो दरवाज़े दरवाज़े वाला हो जाएगा। यानी आसमान में बहुत ज़्यादा दरवाज़े बना दिए जाएंगे फ़रिश्तों के नुज़ूल के लिए। वसुय्यरतिल जिबालु फ़कानत सराबा, और पहाड़ों को चलाया जाएगा तो वो रेत की तरह हो जाएंगे। यानी जब नफ़क़ा ओला होगा तो पहाड़ रुई के गालों की तरह रेत की तरह उड़ते फिरेंगे, यानी इनकी कोई हैसियत नहीं होगी। ये मिसाल इसलिए दी कि भारी से भारी चीज़ यानी सबसे भारी चीज़ पहाड़ी है तो वो भी रेत की तरह हो जाएगी, या ज़मीन आसमान सब दरहम बरहम हो जाएंगे। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा। फिर ये कि पहले यौमुल फ़स्ल यानी फ़ैसले के दिन का तज़किरा था। फिर ये कि फ़ैसले के दिन क्या वाक़यात पेश आएंगे इन आयत के अंदर, उसी का तज़किरा है। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, बिलाशुबा जहन्नम घात की जगह है। यानी जहन्नम के पुल पर फरिश्ते इंतज़ार कर रहे हैं कुफ़ार का। जैसे ही वो आएंगे, जिस तरह आदमी किसी के इंतज़ार में घात लगा कर बैठता है, जैसे ही वो आता है उस पर टूट पड़ता है, इसी तरह फरिश्ते जो ही कुफ़ार जहन्नम के करीब पहुँचेंगे फ़ौरन उनको पकड़कर जहन्नम में घसीट कर दाखिल कर देंगे। लित्तागीन मआबा, सरकशों का ठिकाना है। जहन्नम के बारे में बयान किया कि सरकशों का ठिकाना है। तागीन कहते हैं हद से तजावुज़ करने वाला, और इसका आला फ़र्द काफिर ही है कि उसने हद से तजावुज़ कर दिया कि अल्लाह तबारक व तआला की इताअत छोड़कर, ईमान को छोड़कर उसने कुफ्र इख्तियार किया। तो यहाँ तागीन से मुराद है कुफ़ार, यानी कुफ़ार का ठिकाना जहन्नम ही है। लाबिसीन फ़ीहा अहक़ाबा, फिर वो उसमें एक लंबी मुद्दत ठहरेंगे। अहक़ाब कहते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ कौल हैं, लेकिन जो मुराद है वो यहाँ यही है कि जिसकी कोई इंतहा ना हो। इसी को अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी आयतों के अंदर खालिदीन फ़ीहा अबदा से ताबीर किया है कि कुफ़ार जहन्नम के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, नहीं चखेंगे वो उसमें कोई ठंडक और न कोई पीने की चीज़। यानी कुफ़ार को जहन्नम के अंदर किसी भी तरह की कोई राहत नहीं पहुँचेगी, न अदना दर्जे की ठंडक और न ये कि कोई पीने की चीज़। लेकिन सवाल होता है कि जहन्नम के अंदर तो ज़महरीर का अज़ाब होगा जो बहुत सख्त ठंडक का अज़ाब होगा, तो वो इसके मुनाफी नहीं है। यहाँ ठंडक से मुराद वो ठंडक है जिससे आदमी को राहत मिलती है। यानी गर्मी में आदमी को ठंडा पानी मिल जाए तो उससे राहत मिलती है, लेकिन यही ठंड या यही बर्फ़ अगर सर्दियों के अंदर हो तो बहुत ज़्यादा इससे तकलीफ़ होती है। तो वो जो ठंड होगी जहन्नम के अंदर वो अज़ाब ही की शक्ल में होगी, कोई राहत पहुँचाने के लिए नहीं होगी। इसी तरह यह आता है कि उनको खोलता हुआ पानी दिया जाएगा, हाँ, और यहाँ मना किया गया है कि उनको कोई पीने की चीज़ नहीं मिलेगी। तो ये पीने की चीज़ जहन्नमियों का पीप होगा, ये कि बहुत ज़्यादा खोलता हुआ पानी होगा कि जैसे ही आदमी अपने मुँह के करीब करेगा तो खाल सुकड़ कर, खाल फट कर, खाल जल कर ऊपर पहुँच जाएगी, और ज़बरदस्ती फरिश्ते उसके मुँह के अंदर वो पानी दाखिल करेंगे तो उसकी आंतें कट कट कर पाखाने के रास्ते से बाहर आ जाएगी, जिसको दूसरी आयत के अंदर बयान किया है फ़क़त्तअ अमआअहुम, यानी उनकी आंतों को काट देगा वो पानी। इल्ला हमीम व गस्साक़ा, मगर गर्म पानी और पीप के। यानी कोई अगर मिलेगा भी पीने को तो गर्म पानी, इंतहाई गर्म पानी जो आंतों को काट कर बाहर निकल आएगा, ये कि जहन्नमियों का पीप। फिर ये कि अब इतने ख़तरनाक अज़ाब कुफ़ार को दिया जाएगा, तो इससे ये समझ में आता है कि ये तो कुफ़ार पर ज़ुल्म हुआ, इतनी ज़्यादा सख्त सज़ा देना ये तो कुफ़ार पर ज़ुल्म हुआ। नहीं, ये उनका पूरा पूरा बदला है। उसी को अल्लाह तबारक व तआला बयान करते हैं जज़ाअम विफ़ाक़ा, ये पूरा पूरा बदला है, कोई जुल्म ज़्यादती नहीं है। इनका जुल्म
कुफ़ार का ज़ुल्म इससे भी बड़ा हुआ है कि वो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत को छोड़कर, अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान को छोड़कर उन्होंने कुफ्र इख्तियार किया, तो इसकी सज़ा ऐसी ही होनी चाहिए। इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा, और उनका जुर्म ये बयान किया कि वो हिसाब की उम्मीद ही नहीं रखते थे, यानी वो क़यामत पर यकीन ही नहीं रखते थे, ईमान ही नहीं रखते थे अल्लाह तबारक व तआला पर, उसके रसूल पर। उसके रसूल ख़बरें दे रहे हैं और ये मुसलसल इनकार किए जा रहे हैं। वकज़्ज़बू बि आयातिना किज़्ज़ाबा, और उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया, यानी हमारी जो निशानियां हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर सराहतन दलालत करती है, ये सूरज, ये सितारे, ये ज़मीन व आसमान अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर बिल्कुल सराहतन दलालत कर रहे हैं, लेकिन उसने इनमें गौर नहीं किया। और हमारी आयतें, ये कि कुरान करीम की आयतें अल्लाह तबारक व तआला के वजूद पर चीख चीख कर पुकार रही हैं कि अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाओ, लेकिन ये आयत निशानियों का, ये कि कुरान की आयतों का इनकार करते हैं। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा, और हमने हर चीज़ को महफूज कर रखा है, यानी कुफ़ार ये जो जुल्म ज़ियादती कर रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, वो हमने हर चीज़ को लिख कर महफूज कर रखा है। दोनों कंधों पर फरिश्ते बैठे हुए हैं, वो एक एक हरकत को गिन रहे हैं, एक एक हरकत को लिख रहे हैं। कल क़यामत के दिन नामाए आमाल दे दिया जाएगा और हर आदमी अपने एक एक अमल को पढ़ लेगा। वज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, तो तुम चखो और तुम पर नहीं ज़्यादा किया जाएगा मगर अज़ाब। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस अज़ाब का मज़ा चखो और तुम पर अज़ाब बढ़ता ही चला जाएगा। यानी एक आदमी अगर किसी तकलीफ़ में हो तो उसको उसकी आदत हो जाती है और फिर वो तकलीफ़ उसको हल्की मालूम होती है। तो जहन्नम के अंदर ऐसा नहीं होगा, बल ये नहीं होगा कि आदमी मुसलसल तकलीफ़ में है तो उसको ये तकलीफ़ की आदत हो जाए और उसको हल्की मालूम होने लगे। नहीं नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला अज़ाब को बढ़ाते ही चले जाएंगे, जिससे वो मुसलसल तकलीफ़ में ही रहेगा। अमा अलैना इल्लल बलाग।